Auzubillahiminash-shaitanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. This is Agha Shahyar Khan from the platform of CSS Greenery. I again welcome to all of you once again in the weekly news analysis, and this is our fifth week news analysis. This is our seventh combined batch of Pakistan affairs and current affairs, and our eighth batch is going to start from November 13, 2021. This week there are a lot of developments like the previous weeks, और इसमें जो मैक्रो लेवल के ऊपर पहले मैं बता देता हूँ, then we will discuss one by one इंशाल्लाह। कि सबसे पहली जो बड़ी डेवलपमेंट से एक है, एक तो G20 समिट हुई है हमारे पास अक्टूबर के आखिरी वीक में। डेवलप वर्ल्ड्स के लीडर्स जो है उन्होंने ज्वाइन किया G20 समिट में, उसके की टेकअवेज देखेंगे। देन COP26 है क्लाइमेट के ऊपर, जो आपको पता है डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसको हम COP के नाम से जानते हैं। और सबसे पहले जो पेरिस में हुई 2015 की, वो एक जो है वो चेंजिंग सिनेरियो वाला था, एक लैंडमार्क COP21 थी। और फिर COP26 जो है वो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई अक्टूबर 31 को, अगेन लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। उसके अंदर क्या चेंजेस हैं, उसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट कॉन्फ्रेंस एज वेल। उसके अलावा द डिबेट दैट हैड बीन the part of our news channels for the past 2-3 weeks, and that is the appointment of the DG-ISI and some sort of tussle between the civilian administration and the military administration has finally going to settle after the publication of notification from the Prime Minister House. उसको भी analyze करेंगे कि how Prime Minister of Pakistan set a precedent in the appointment of the Director General of Inter-Services Intelligence, and that is the good point as far as the democracy is concerned. साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसको किस किस टॉपिक में आप यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके अलावा there's bilateral talks between the United States of America and Pakistan, that again a good sign, because Pakistan is always trying to establish the bilateral relations with the United States of America apart from the Afghanistan. Pakistan चाहता है कि economic ties, military ties, political ties direct हो United States of America के, और पाकिस्तान को अफगानिस्तान के lens के थ्रू ना देखे। अगेन उसको देखेंगे क्या है उसके अंदर, क्या उसकी डिटेल्स हैं। और फिर इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट to the Kingdom of Saudi Arabia, and Kingdom of Saudi Arabia, as you all know, that one of the closest friend of Pakistan and has fraternal relations with Pakistan since the creation, or they again supported Pakistan with loan and वाइल, और उसको जो है वो सपोर्ट किया। उसकी डिटेल्स में भी हम देखेंगे कि कितना वाइल हुआ, कितने जो है वो प्राइस के ऊपर उन्होंने जो है वो डेफरेटमेंट पेमेंट्स के ऊपर क्या जो है उसकी डिटेल्स हैं। देन साइबर अटैक ऑन ईरान, उसको भी हम देखेंगे, उसको भी हम एनालाइज करेंगे। और फिर एक और जो पॉजिटिव डेवलपमेंट है एज फार एज द रीजनल चेंजिंग रीजनल सिनेरियो इज कंसर्न, वो है हमारे पास द क्या बोलना चाहिए इसको, the start of good relations between Pakistan and Bangladesh. Although Pakistan and Bangladesh are both Muslim countries, but as you all know that the dark episode and the fall of Dhaka in 1971, तो उसके बाद से अब जो कुछ 3-4 सालों से एक नई वेव हुई है गुड रिलेशंस बिटवीन पाकिस्तान बांग्लादेश, तो उसी की कड़ी में एक नया एपिसोड भी हुआ है, उसको भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर जो हमारा चेंज है वो है द रेजिग्नेशन ऑफ द CM बलूचिस्तान, उसको भी हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज जो कि है हमारी G20 की समिट, उसको हम लेके चलते हैं कि हाईलाइट क्या थी जो अक्टूबर 31 को हुई रोम में, यानी इटली के अंदर G20 समिट। अगेन जैसा कि मैं पहले भी कहता हूं कि our weekly news analysis is not restricted to the domestic news, but we cover international news as well as from the renowned international newspapers like New York Times, Washington Post, as you see on your screen, Bloomberg का आर्टिकल से मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा जी, की टेकअवेज क्या है? लीडर्स ऑफ द ग्रुप G20 countries haggled for 2 days in Rome over steps to tackle climate change and the pandemic recovery. इसका क्या मतलब?
जो एजेंडा था G20 समिट का, वो 2 पॉइंट एजेंडा था बेसिकली, टू टैकल द राइजिंग थ्रेट ऑफ द क्लाइमेट एंड द पैंडेमिक रिकवरी। ये जो पैंडेमिक आया था उससे रिकवर किस तरह होना चाहिए, रिकवर किस तरह हो। तो आपको पता है कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो COP 26 भी है, जो कि क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है। तो उसी के बैकग्राउंड में यहाँ पर भी डिस्कस हुआ। G20 negotiations worked all night from Saturday to Sunday on the wording of the summit's concluding statements. They labored to bridge the gap between the push for tougher climate stance from the European countries going into the 13-day Glasgow conference and concern from China, India, and Russia, where fossil fuels and coal play a major role. आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जो क्लाइमेट की पूरी डिबेट है, इट इज अ डिबेट बिटवीन द डेवलप्ड वर्ल्ड एंड द डेवलपिंग कंट्रीज। अब डेवलप्ड वर्ल्ड वाले ये कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज, ये जो कोल पावर्ड प्लांट्स हैं या दूसरे जो फॉसिल फ्यूल से जो चलने वाले पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद कर दिया जाए क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग। अब जब डेवलपिंग कंट्रीज ये कहते हैं कि भाई आपने तो पूरा माहौल पोल्यूट कर दिया, ठीक है ना, जो डेवलप वर्ल्ड है, इंडस्ट्रियलाइज नेशन लाइक यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, कनाडा, यूके, कि आपने तो आप उस स्टेज से कोल पावर प्लांट जला जला के, फॉसिल फॉइल के पावर प्लांट चला चला के आप डेवलप स्टेज पर आ गए। अब हम तो अभी डेवलपिंग, ना हमारे पास इतना पैसा है कि हम डायरेक्ट जो है वो रिन्यूएबल्स पे जाएं या डायरेक्ट उस जो है वो सोलर पे जाएं या उसके ऊपर जाएं। हमारे पास तो वो नहीं, अभी हमारी वो स्टेज चल रही। तो आप अगर हमें पुश करते हैं तो ये ज्यादती है। या तो आप हमें फंड्स प्रोवाइड करें, पैसा दें, देन वी कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फिर हम ट्रांसफॉर्म करें। नहीं तो फिर हमारे साथ ये ज्यादती है। अभी रशिया के भी जो है वो स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि आप जो है वो पुश कर रहे हैं 2050 तक जीरो इमिशन हो जाए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जाती है। तो अगेन ये डेडलॉक हमेशा रहता है। क्या टी का बेस है जी? The summit arrived at compromise wording for when G20 nations need to reach net zero greenhouse emissions. Net zero greenhouse emission 2050 तक बोला कि हम करेंगे। The group of 7 rich democracies has set 2050 as the latest date, but the leaders of larger G20 forums settled on by or around mid-century. China, Saudi Arabia, and Russia have set 2060 as their goal for reaching global neutrality, क्योंकि चाइना, सऊदी अरब, रशिया और डेवलपिंग कंट्रीज शुमार होते हैं, तो उन्होंने 2060 की डेट दी। ठीक है जी। इसके अलावा क्या हुआ जी? The group of 20 concurred that the impact of climate change, such as extreme winds, floods, and rising sea levels, will be much lower if the average increase in global temperature can be held to 1.5 degrees Celsius, जो कि पेरिस अकॉर्ड है कि वही कि जो राइजिंग टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल एरा से, अगर उसको 1.5 डिग्रीज तक रोक दें तो एक लैंडमार्क अचीवमेंट होगी, लेकिन उसके लिए हमें काफी काम करना पड़ेगा। उसके अलावा जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि aside from the climate issues, the leaders signed of a landmark agreement for the countries to enact a global minimum corporate tax of 15%. अब global minimum corporate tax, जिसके बारे में हमेशा ये था कि जो corporates है, for example एप्पल है, फेसबुक है या दूसरी corporations है, वो ना सिर्फ जिन कंट्रीज में उनका हेडक्वार्टर है वहां टैक्स देंगी, बल्कि जहां से ये प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं वहां पर भी इनको टैक्स देना पड़ेगा। The global minimum is admitted deterring multinational companies from dodging taxes by shifting profits to countries with ultra low rates where the companies may do little actual business। क्योंकि जब से 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं, तब से एक न्यू डिबेट जनरेट हुई दुनिया में, वो है डिस्पैरिटी की, इनइक्वालिटी की, कि कुछ परसेंट लोग जो है वो बहुत ज्यादा अमीर है, दुनिया के 8 से 9 लोग जो है वो आधी दुनिया से ज्यादा अमीर है, और जो कि कॉर्पोरेट्स चला रहे होते हैं। तो कॉर्पोरेट्स अपनी टेक्निक की वजह से टैक्सेस बचा जाती थी, जिससे इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही थी, एंड दैट इज व्हाई एक बड़ा कुछ 10 सालों से इसकी कोशिश की जा रही थी कॉर्पोरेट मिनिमम टैक्स की, जो कि अब इसके ऊपर कंसेंसस बिल्ड हो गया। Next important point is the leader also said they would keep working on a French initiative where they could reach $100 billion in financial support to needier countries in Africa in the form of special drawing rights. Individual countries already allocate some $45 billion कि हम जो rich countries हैं वो $100 billion जो है वो देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो क्लाइमेट चेंज से अच्छी तरह उस चैलेंज को एड्रेस कर पाए, उसको मिटिगेट कर पाए, और उसको जो है वो इमरजेंसी मेजर्स ले पाएँ, ताकि उस सिचुएशन में उसको जो है वो काउंटर किया जा सके। उसके अलावा द प्रपोज्ड reflect concern that the post-pandemic recovery is diverging, with richer countries is rebounding faster due to extensive vaccination and large amount of stimulus spending the poorer countries cannot afford। पैंडेमिक में ये देखा जा रहा है कि डिस्पैरिटी है कि जो अमीर मुल्क हैं वो जो है वो ज्यादा जल्दी रिकवर हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास वैक्सीनेशन की ड्राइव ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, ज्यादा जल्दी अपने लोगों को वैक्सीनेशन कर रहे हैं। जो गरीब मुल्क है वो नहीं कर पा रहे, तो उनकी मदद की जाएगी ताकि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन को इंश्योर कराया जा सके। तो ये कुछ टेक अवेज थे G20 समिट के, जो मैंने आपको बताया। सबसे पहला था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो ग्लोबल जीरो की डेडलाइन है 2050 वो बोला गया, और उन्होंने बोला जो है वो हमारे पास 2020 का। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें वहां पर क्या कहना चाहिए
कॉर्पोरेट टैक्स लगाया गया। और जो है जो मैंने आपको बताया यहाँ पर तीसरी चीज़ पॉइंट जो था कि पुअर कंट्रीज़ को जो $100 बिलियन का प्लेज है उसको दोबारा से रिविज़िट किया गया कि और दोबारा प्लेज किया कि हम करेंगे। उसके अलावा एक और आप कह सकते हैं कि मल्टीलेटरलिज़्म एट सेंट्रल स्टेज, जो मल्टीलेटरलिज़्म खत्म हो गया था डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और वो अ, टीपीपी से भी बाहर आ गया था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से भी बाहर आ गया था, सीओपी 21 से भी बाहर आ गया था, पेरिस क्लाइमेट डील से भी बाहर आ गया था। ठीक है, ट्रेड वॉर इनिशिएट कर दी, तो वो अब यूनिलैटरलिज्म जो है वेन हो रहा है, मल्टीलैटरलिज्म इज अगेन ऑन राइज, एंड G20 समिट इज बेयर द टेस्टिमनी ऑफ दैट फैक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ है जी हमारे पास इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्लाइमेट क्लाइमेट की। अब वो COP26, अब ये COP26 मैंने शायद यहाँ पर रखी हो या नहीं हो, एक सेकंड रुकिएगा, मुझे होना तो चाहिए। अच्छा, COP26 जो है वो बेसिकली 12 डेज का है, उसके ऊपर है, हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आर्टिकल निकाला था, लेकिन नहीं कर पाया उसको, फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि अब इस टाइम पे उसको ढूँढना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। हम जो है फिर बाकी की न्यूज़ देखते हैं इंशाल्लाह, फिर हम नेक्स्ट वीक COP26 को देख लेंगे। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, हम G20 समिट की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस। अगेन एज आई मेंशन इन द स्टार्ट दैट पाकिस्तान इज डूइंग इट्स बेस्ट to made good relations with America, not from the lens of Afghanistan, but bilaterally economic, political और humanitarian assistance में। और उसी के तहत एक मीटिंग हुई बिटवीन द यूएस अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट सिविलियन सिक्योरिटी डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स उजरा जिया एंड पाकिस्तान एम्बेसडर असद मजीद के दरमियान। इसमें उसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट हुई कि 17 मेंबर डेलीगेशन जो है पाकिस्तान का, जिसमें लॉ मेकर्स थे, जजेस थे, सिविलियन सर्वेंट्स हैं, उन्होंने विजिट किया वाशिंगटन का लास्ट वीक, और डिफरेंट वेन्यूज में विजिट किया, आईटी रिलेटेड फील्ड्स, इकोनॉमी, और वहाँ के लोगों को परसुएट किया कि टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान एंड टू बिल्ड बेटर रिलेशंस विद पाकिस्तान इन वेरियस एवेन्यूज। उसी के साथ साथ ऑन फ्राइडे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन, जो कि उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, बिकॉज पाकिस्तान continuously insist United States and advise United States and request United States to provide humanitarian aid to Afghanistan in order to avoid any kind of civil war in Afghanistan, और उसके रिजीम को स्टेबल बनाया जा सके, और यूनाइटेड स्टेट्स रिस्पॉन्स इन अ पॉजिटिव वे। और उसी नतीजे में जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन है, उन्होंने कंफर्म किया कि यूनाइटेड स्टेट $144 मिलियन एडिशनल ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देगा अफगानिस्तान को, एंड फॉर अफगान रेफ्यूजीज इन द रीजन। सो फार यूएस हैज सेंट $474 मिलियन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू अफगानिस्तान। इस टॉपिक को आप जो है अफगानिस्तान रिलेशंस में भी लिख सकते हैं। याद है जब हमने अभी रिसेंटली अफगानिस्तान तालिबान 2.0 पढ़ा था, और हमने इसमें देखा था कि एक चैलेंज तालिबान के लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस भी है, और हमने प्रोस्पेक्ट देखा था टू अ सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिविटी। उसमें भी आप ये लिख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ने $474 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी है। और फिर पाकिस्तान की जहाँ पे उनकी हमने बात की थी कि स्टेट बैंक मदद कर रहा है, आपका वापडा कर रहा है, पाकिस्तान असिस्टेंस कर रहा है, उसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान यूएस को रिक्वेस्ट कर रहा है, इंसिस्ट कर रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे। उसके नतीजे में यूएस ने तकरीबन $474 मिलियन की एड दे चुका है। उसके अलावा आज के इस न्यूज़ वीक एनालिसिस के अंदर हमारे पास G20 समिट हो गई, पाक यूएस रिलेशंस हो गया। इसके अलावा जो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो 2 हैं, एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से रिलेटेड है, लेकिन अगर हम पहले क्लाइमेट चेंज की बात कर लें, कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की आपको मदद करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर स्ट्रेंथ, बिल्ड देयर कैपेसिटी टू टैकल द नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। और उसी के नतीजे में यूनाइटेड किंगडम विल प्रोवाइड 7 मिलियन पाउंड, यूनाइटेड किंगडम ने प्लेज किया, तो पाकिस्तान को 7 मिलियन पाउंड देगा, ताकि पाकिस्तान की कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जा सके टू टैकल द चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज। और खास तौर पे जो टेक्नोलॉजी है लाइक जिगजैग टेक्नोलॉजी, जिससे जो ईंटों की भट्टी होती है उसकी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि इमिशन कम हो, पोल्यूट कम से कम हो, इमिशंस को रिड्यूस किया जा सके, उस चीज में मदद करेगा।
नेक्स्ट जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से एक पॉजिटिव न्यूज कि पाकिस्तान अगेन होस्टिंग 104 चाइनीज कंपनीज विल टेक पार्ट इन 3-day पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो इन 2021 हेल्ड इन लाहौर रॉयल पाम गोल्फ एंड कंट्री क्लब फ्रॉम अक्टूबर 29 को ये हो गया और 105 चाइनीज कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया। 400 चाइनीज कंपनी ने पार्टिसिपेट करना था बट बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन इसको नीचे लाया गया। अगेन अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एज फार एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इज कंसर्न। इस चीज को भी आप जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में या पाक चाइना रिलेशन में या इंडस्ट्रियलाइजेशन के टॉपिक में यूज कर सकते हैं। नाउ कम टू द पाकिस्तान रिलेशंस विद द मुस्लिम कंट्रीज, जिसमें दो कंट्रीज के लिए इंपॉर्टेंट है, एक पाकिस्तान का रिलेशन सऊदी अरब के साथ और पाकिस्तान का रिलेशन बांग्लादेश के साथ। एज फार एज द सऊदी अरब इज कंसर्न, एज आई मेंशन इन द स्टार्ट दैट सऊदी अरब अगेन हेल्प पाकिस्तान and agreed to provide $4.2 billion lifeline into Pakistan's economy, जिसमें से सऊदी अरबिया would deposit $1.3 billion cash in the state bank to prop up the foreign exchange reserve in Pakistan and provide $1.2 billion worth of oil on deferred payment, जिसकी हम बाद में पेमेंट करेंगे। इससे पहले भी सऊदी अरबिया हमारी मदद कर चुका है। The Canadian extended a similar package valued at $6 billion in October 2018 to provide a breathing space to Pakistan's economy. As far as Pakistan's Bangladesh relation is concerned, then Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina on Monday reiterated its government desire for stronger trade ties and economic collaboration in Pakistan. Again, this is shifting of tectonic plates, shifting of strategic tectonic plates in the region. वो बांग्लादेश जिसकी इंडिया की तरफ बहुत ज्यादा टिल्ट थी, वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पे आ रहा है क्योंकि चाइनीज इंटरेस्ट भी बांग्लादेश में पड़ रहा है। चाइना इज बेसिकली डेवलपिंग चिटागोंग पोर्ट इन बांग्लादेश and Bangladesh is also the part of China's BRI and Pakistan is also the part of China's BRI. So these both of these Muslim countries is now coming closer. She was talking to Pakistan's High Commissioner to Bangladesh and she also uh, basically यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा कि उन्होंने इस चीज की ख्वाहिश भी जाहिर की that she want to visit Pakistan in the near future. This is important to note that meeting took place time when both countries have begun to prepare for Miss Hasina's first visit to Pakistan, but no date has been set as yet for the trip. If Sheikh Hasina visit Pakistan, then again it's a very important development as far as changing regional dynamics are concerned, because एक वो ally जो कि इंडिया के बहुत closest था और कुछ हद तक है भी, वो अब पाकिस्तान की तरफ और चाइना की तरफ टिल्ट कर रहा है। अगेन चेंजिंग डायनामिक्स है, इसको हमें मद्देनजर रखना होगा। इसके अलावा जी अगर हम बात करें थोड़ी सी पॉलिटिकल अरीना की और फिर थोड़ी सी पॉलिटिकल अरीना की पाकिस्तान में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बलूचिस्तान के सीएम ने रिजाइन किया। अगेन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाले टॉपिक में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। अगेन ग्रुपिंग थी, उस ग्रुपिंग में हम नहीं जाएंगे कि किसकी ग्रुपिंग थी। जो पुराने सीएम थे उनके अगेंस्ट ग्रुपिंग थी, कुछ पार्टीज के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इश्यूज थे। तो जो भी था, एक बलूचिस्तान के सीएम ने रिजाइन दिया और अगेन जो है वो पूरी अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाए। देन जी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है पॉलिटिकल सिनेरियो में वो है कि पीएम सेट अ प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीआईएसआई। इससे पहले ऑल्दो 2012 से पहले तो वो खुद ही कर देते थे, लेकिन 2012 के बाद से द अनाउंसमेंट ऑफ न्यू डीजीआईएसआई केम फ्रॉम द पीएम्स ऑफिस, 2012 से ये प्रेसिडेंट शुरू हुआ कि पीएम ऑफिस से जो है वो डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट का लेटर इशू होता था। बट कभी भी आज तक इंटरव्यूज नहीं लिए गए या उनकी जो स्क्रूटनी नहीं हुई कि भाई प्राइम मिनिस्टर बैठे और जो भी कैंडिडेट्स को उन्होंने नॉमिनेट किया है आईएसपीआर ने या आपकी आर्मी ने, उनका इंटरव्यू लिया जाए, देन प्राइम मिनिस्टर डिसाइड कि भाई किसको बनना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर सेट प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ही टुक इंटरव्यूज फ्रॉम ऑल द 3 कैंडिडेट्स, देन ही हैज डिसाइडेड कि किसको बनना चाहिए और किसको नहीं बनना चाहिए। ऑल्दो ही appointed same person which was earlier notified by the ISPR, but yet he interviewed all the 3%, and that is a positive development as far as the democracy of Pakistan is concerned, the positive development as far as leverage of civilian establishment is concerned। ठीक है जी, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जिसको हमें सराहना चाहिए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ और अब ऐसा हुआ, तो इसका मतलब आपकी सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो एक अपनी लेवरेज को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, in fact, the last two appointments during the current government also came from the military's media wing. However, this time Prime Minister objected to the past practice and insisted that he would make the final call, triggering an unprecedented standoff between civilian and military leadership, which previously claimed
to be on the same page. The deadlock seemed to have broken after both sides reached to compromise. The Prime Minister has seen and approved the appointment of Lieutenant General Nadeem Ahmad Anjum as DG ISI with effect from November 2021। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि ये भी प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है कि वो कब चेंज कर रहा है IGI को या नहीं। It has never happened before that serving generals were interviewed by the sitting prime minister on the DG ISI position. So positive development for the democracy of Pakistan is concerned, और इसको आपने टॉपिक में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जी पॉलिटिकल अरीना में ही देखें ये तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई यहाँ पर कि जब आपके शरिया कोर्ट ने जो इस्लामिक प्रैक्टिस है सवारा किया, जिसको हम जो है वनी की प्रैक्टिस भी कहते हैं, उसको जो है उन्होंने इलीगल करार दिया और बोला कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। वनी की प्रैक्टिस ये होती है कि जब भी कोई कत्ल हो जाता है दो ग्रुप्स में और उसको जो है बैठ के सॉल्व किया जाता है, तो जो मुल्जिम होते हैं तो उनकी कोई छोटी बेटी या छोटी यंग गर्ल को जो है किसी बड़े आदमी के साथ सामने ग्रुप के साथ शादी करा दी जाती है। These decisions are taken by jirgas who call the giveaway in marriage of young girls from the aggressive family to older man of the grieved party. Three-judge bench of the Sharia court ruled that the religious scholars had agreed that the wani was against the injunctions of Islam. So again, a positive development, but the question is why it takes too long for the federal court to declare it un-Islamic. So there are many question marks, but again, it is a positive development. फिर जी आप एक और पॉइंट जिसको आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज अ कर्स में एज एविडेंस यूज कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सोशल मीडिया या साइबर अटैक्स या साइबर सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं, वो है कि साइबर अटैक्स इन ईरान। A cyber attack targeted the fuel station on Tuesday across Iran, shutting down a government system managing fuel subsidies and leaving angry motorists stranded in long lines at shuttered stations. पूरे उनके फ्यूल पंप्स, क्योंकि वो गवर्नमेंट के कार्ड के जरिए सब लोग अपना पंप डलवाते हैं पेट्रोल, और फिर उसको फिर जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया और पूरे फ्यूल स्टेशन जो है वो ब्लॉक पड़े रहे कुछ घंटों तक। और ये साइबर अटैक था ईरान के ऊपर। इससे पहले भी उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज में हो चुका है और they pointing fingers towards Israel, but the question is no one is secure from cyber attacks, and each and every nation should build its capacity to deter any cyber attacks। और पाकिस्तान को भी इसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, because we are moving towards a digitalized world and a world of artificial intelligence। अच्छा जी, तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम चलते हैं ज़रा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की तरफ या एडिटोरियल्स की तरफ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ने चाहिए और जो मैं शेयर भी करूँगा इंशाल्लाह आप लोगों की ड्राइव के ऊपर। और वो कुछ एडिटोरियल्स या कुछ न्यूज़ कौन से हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वीक 5 सबसे पहला फैसल बारी। मैं हमेशा कहता हूँ फैसल बारी के जो भी आर्टिकल्स आए एजुकेशन के ऊपर उसको आप जरूर पढ़ा करें। फैसल राइट यूजुअली राइट ऑन द टॉपिक ऑफ एजुकेशन एंड ही रोड बेसिकली कोविड इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट्स। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की उन्होंने उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ की बात की है, एंजाइटी डिप्रेशन मेंटल हेल्थ की बात की है कि किस तरह कोविड की वजह से एंजाइटी डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ डैमेज हुई है स्टूडेंट्स की, बिकॉज they they stop meeting with their friends, the colleges are closed, यूनिवर्सिटीज आर क्लोज्ड। फिर उनके जो माँ बाप हैं उनमें से मेजोरिटी की जॉब्स खत्म हो गई। फिर उन्हें काफी अपने रिश्तेदारों को भी मरते हुए दिखा बिकॉज ऑफ द कोविड पैंडेमिक, और उसकी वजह से उनकी मेंटल एंजाइटी में या डिप्रेशन में इजाफा हुआ है। दैट इज व्हाई द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान should incorporate that dimension of that problem as well and conduct psychological therapies for the students in Pakistan। और उसको भी एक इम्पॉर्टेंट है, उसको देखना चाहिए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, उसको आप ऐसे में भी एजुकेशन में यूज कर सकते हैं, एजुकेशन टॉपिक में यूज कर सकते हैं, या कोविड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन उसके अंदर भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ग्लोबल गवर्नेंस। खासतौर पर जिन बच्चों का आईआर है उनको ये टॉपिक हेल्प करेगा। इसमें बताया गया है कि किस तरह जो है वो ग्लोबलाइजेशन इज अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म है, किस तरह जो दुनिया में जो एमएनसीज हैं या जो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बैठे हुए लोग हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज की टॉप हायरार्की के लोग या जो वहाँ की गवर्नेंस को देख रहे होते हैं उनको अपने साथ मिला के उस डेवलपिंग कंट्रीज के रिसोर्सेज को डिप्लीट कर रहे होते हैं। जैसा कि आपको सबको याद
याद है अगर किसी ने बुक पढ़ी हो कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन, उसमें भी बताया गया है कि किस तरह बड़ी कंपनीज बिहाइंड द कर्टेन स्ट्रिंग्स को पुल करती हैं और डेवलपिंग कंट्रीज को उनकी विशेस के अगेंस्ट उनको डेट ट्रैप भी करती हैं, रिसोर्सेज के ट्रैप में भी ले जाती हैं, और जो है उनके रिसोर्सेज भी डिप्लीट होते रहते हैं, जहाँ पे कुछ परसेंट वहाँ के मुल्क की जो अपर एलीट होती है वो अमीर हो जाती है और पूरा मुल्क जो है वो गरीब होता रहता है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ग्लोबल गवर्नेंस बाय आतिफ अल्ताफ एंड हुसा। इसके अलावा जी हमारे पास जो है वो है दिस वन, टेक्नोलॉजी एंड फेसबुक। आप सबको पता है कि टेस्टमनी हुई फ्रांसिस होगिन की, जो कि विसल ब्लोअर था फेसबुक में, और सही पॉइंट अगेन विजिबल किया। तो सबको पता है कि किस तरह फेसबुक जो है वो शेप करती है आपकी परसेप्शन को, आपके बिलीफ को, आपके रियलिटी को। रियलिटी शायद उससे अलग भी हो, लेकिन फेसबुक आपको इंजीनियर करती है कि यही रियलिटी है। आपके जो व्यूज होते हैं उसी को इको किया जाता है और उसी को उसने जो है वो प्रेजेंट किया। और फेसबुक को अगेन जो उसका नेगेटिव पार्ट है, यानी वो मोरालिटी, प्रॉफिट को मोरालिटी पे प्रेफर करता है, उसको सबके सामने लीक किया। इंटरनल डॉक्यूमेंट्स टू द वॉल स्ट्रीट जर्नल, यूएस लॉ फर्म alleging that the tech giants product were fueling hate and harming children's military by constantly choosing profit over safety। किसी को इसकी पूरी डिटेल देखनी है या देखना है कि फेसबुक किस तरह काम करता है, मैं अगेन कहता हूँ, बार बार बता चुका हूँ, अगेन बता देता हूँ। नेटफ्लिक्स के ऊपर मौजूद है जो है वो सीरीज सोशल नेटवर्क के नाम से, वो आप देखें। ठीक है, नहीं सोशल नेटवर्क नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम मैं भूल गया हूँ। तो वो आप ज़रूर देखें, उसमें पूरा भुला गया है और वो उसके अंदर काफ़ी उनके जो है वो रिसोर्सेज़ के जो उनके काम कर चुके हैं, मीडिया, सोशल मीडिया में लोग, उनके इंटरव्यूज़ हैं, उनके स्टेटमेंट्स हैं। इट इज़ डॉक्यूमेंट्री लाइक मूवी। तो उसको आप अगर मूवी तो नहीं है, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री टाइप है, वो आप ज़रूर देखें, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। सोशल डिलेमा, ठीक है, सोशल नेटवर्क नहीं, सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री ऑन नेटफ्लिक्स, ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लॉन्ग। उसको ज़रूर देखें, ये चीज़ आपको पूरी समझ में आएगी कि किस तरह सोशल मीडिया एक पूरी रियलिटी का परसेप्शन चेंज कर देता है इंडिविजुअल के लिए। और वो चीज़ आप सोशल मीडिया के एसएम में भी यूज़ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में भी आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इट टू द न्यूज़ वीक एनालिसिस फ्रॉम हमारा जो ये न्यूज़ वीक एनालिसिस था, फिफ्थ न्यूज़ वीक एनालिसिस था फ्रॉम अक्टूबर 25 टू 31। इसमें जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी वो G20 समिट थी, COP 26 थी, जिसको हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एनालाइज करेंगे। G20 को हमने कर लिया। इसके अलावा पाकिस्तान के टॉक्स थे यूएस के साथ, बांग्लादेश के साथ, सऊदी अरब ने हमारी अगेन मदद की, यूके ने हमें एक सपोर्ट पैकेज दिया $7 मिलियन का। पॉलिटिकल एरिना में हमने देखा कि शरिया कोर्ट ने वानी वाली रस्म को अनइस्लामिक करार दिया, बलूचिस्तान सीएम ने रिजाइन किया, एंड जो है हमारे पास पीएम ने एक प्रेसिडेंट बनाया, ताकि जो कि डीजीआईएसआई की अपॉइंटमेंट के ऊपर। ठीक है जी, और फिर हमने देखा कि एडिटोरियल्स के अंदर एजुकेशन का एडिटोरियल हमने देखा, और फिर हाउ ग्लोबलाइजेशन न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म उसको हमने देखा, और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जो एक एडिटोरियल आया है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको पढ़ना चाहिए, और इन सब को आपने जब भी आप क्वेश्चन लिखें, ऐसे लिखें, अपने आर्गुमेंट्स में यूटिलाइज करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर हाई। फिर हमने उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी देखा कि जो है हमारे पास 3 डे पाकिस्तान इंडस्ट्रियल एक्सपो 2021 हेल्ड हुई लाहौर के अंदर। फिर साइबर सिक्योरिटी, जो कि साइबर अटैक हुआ इराक के ऊपर। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे। इफ यू डू नॉट हैव एनी क्वेश्चन देन इंशाल्लाह वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू लेक्चर, और फिर हम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह न्यूज़ वीक एनालिसिस के साथ मिलेंगे। किसी को क्वेश्चन जी? यस और नो काइंडली बता दें। वो हम लेते हैं बाद में। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। इंशाल्लाह वी विल मीट नेक्स्ट वीक एज फार एज न्यूज़ वीक एनालिसिस आर कंसर्न।